भारतीय डॉक्टरों ने पहली बार नई तकनीक से किया कंधे का सफल ऑपरेशन। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रेस वार्ता कर डॉक्टर प्रियदर्शी अमित ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह से भारतीय डॉक्टरों ने इतिहास रचा है और असीमित हुई हड्डियों में फ्रैक्चर और दर्द से लोगों को निजात दिलाया है। इस केस के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, यह केस बहुत ही गंभीर था क्योंकि हड्डी और मांसपेशी दोनों को नुकसान पहुंचा था। चूँकि जॉइंट सॉकेट काफ़ी फट चुका था और कंधे की मांसपेशी बुरी तरह से घिस चुकी थी, इसलिए हमें ऐसा इलाज चाहिए था जो दोनों समस्याओं को सटीकता और मजबूती से ठीक कर सके। इसी वजह से हमने बोन ग्राफ्ट के साथ साथ ह्यूमन डर्मल एलोग्राफ्ट पैच लगाने का फैसला किया। डॉक्टर अमित विदेश में भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। इन्होंने इसके बारे में आगे बताया, फटी हुई रोटेटर कफ मांसपेशी को ठीक करने के लिए हमने यह पैच लगाया। इस तकनीक से हमें लंबे समय तक अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद थी और दोबारा मांसपेशी फटने का खतरा भी कम था। इस केस में डॉक्टरों ने मरीज के कंधे की फटी हुई मांसपेशी को सहारा देने के लिए डोनर से मिली इंसानी त्वचा से बना एक पैच इस्तेमाल किया। इस पैच को ह्यूमन डर्मल एलोग्राफ्ट कहा जाता है। यह शरीर को प्राकृतिक सहारा देता है और ठीक होने की प्रक्रिया में मदद करता है। इसे कंधे के खराब हिस्से पर लगाया गया ताकि मरम्मत मजबूत हो सके और फिर से चोट लगने का खतरा कम हो। Coming and joining us here, I think it's my pleasure to talk about something that we have done, and I think it's for the public to know about what we're doing. So my name is Dr. Priyadarshi Amit. So I'm an orthopedic surgeon specializing in shoulder, elbow, upper limb surgery. So I do most of the upper limb. So you lift up your hand. That's my specialty. Thank you all, and thank you for my big patience. बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, because I think it's very interesting and important for us to know how the patients feel after these kind of innovative surgery. So I'm going to talk about the innovation in shoulder surgery. To understand कि हम क्या कर रहे हैं, what's a new thing? It's actually a new thing, new for the India, for our country. This has been there in outside. So I have a background of working outside. I was there in the UK where I had to use this thing. It's called a shoulder patch in the shoulder. It's a new thing. So why would you patch the shoulder? ठीक है, patch is patch, shoulder is shoulder. So I think कंधे में patch जो भी है. So patch वाली surgery जो हम कर रहे हैं अभी, I think there were some inherent issues with the shoulder surgery. That's why the innovation kept on happening. There बहुत सारी हुई abroad. They were like good in researchers, so they did a lot of research. So basic problem is, which patients have is shoulder में muscle होती है. I think can you just keep that running so that you can also see the presentation in that way. So for you to understand, I think that's the shoulder, and when you lift the shoulder up, इसमें 4 important muscles होते हैं अंदर में जो कि आपको shoulder उठाने में help करते हैं. So as with age or because of injury, you see that thing tears off. So that's the problem. Once that tears up, the result is you can't lift your shoulder. It's painful. You lose your function. Suppose you want to carry something high up, you can't. If you want to pick something from the top, you can't. If you want to lift some object and put it in your upper shelf, you can't. Sports to दूर की बात है. You can't do anything. You can't do it. So you're functionally challenged. And the pain is always there. I think night pain, I think patients do have night pain. रात में आप सो रहे हो, सोते समय आपको दर्द हो रहा है, you keep waking up, next time you've got a big meeting, everything gets distorted. So shoulder issue, these muscles are very, very important for all the people. Can you just keep that running? So I mean, this was one of our patients who had a similar. So if you carefully look, I mean, the left side is okay, and the right side, you see how much he can lift. He can't. So what can he do with that shoulder? कितना कुछ कर पाएंगे वो? And यहाँ भी आगे नहीं जा रहा है. With support, he will be able to. So you see, he's now lifting it up. So with support you can go, but without support you can't go. So these muscles, these are important. They present in various forms. Sometimes pain होता है, sometimes we call the pseudo paralysis. लकवा की बीमारी, कि हाथ काम नहीं करता. It's a pseudo. Nerves ठीक है, लेकिन muscles हमारे weak है, हम नहीं उठा पाते हैं. So various presentations are there. Keep moving. जब हम MRI करते हैं तो जो हमने उसमें देखा है animation में that muscle, we see it here. So that's where the tear is. This where the arrow are. So that's where the muscle has come off the bone. So एक बार muscle हड्डी से निकल जाता है, then there is no force you can apply on the arm, so it won't go up. Keep moving.
So, initially, I mean, 20, 30 years or 40 years ago, जब surgeons आ रहे थे, shoulder में specialization हो रही थी, shoulder surgery perform हो रही थी, then we started using just a repair. I think just a simple arthroscopic rotator cuff repair. Even I do in most of my patients. So play the video. So you see, I mean, this is like, I believe you are not, you don't get psyched out by this intraoperative measure their bloods. Little bit, okay, fine, you can shy away from there. So ये मसल है जिसको मैं खींच के अपनी जगह पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ. So उसमें कुछ धागे होते हैं, कुछ anchors. So now see, I've repaired it, I've stitched it back to the bone. So you know how you stitch your button to the shirt? So that's what we do, same thing. So we have stitched it, and after that patients get that movement, सारी function आ जाती है. But not all the patients. Arthroscopic later. Yeah, it's arthroscopic. It's a keyhole surgery, like tiny holes in the shoulder. Yeah. So उसके बाद कुछ patients में हम वो result नहीं ला पाते हैं. Keep it moving. जब हम बाद में करते हैं, like 3 months, 6 months later, again we see the tear. मांसपेशी जो हमने अच्छे से stitch किया, फट गया. And we started thinking कि इसका क्या reason है. Then we realized कि इसमें vascularity, you need blood, you need all the cells, to get the things healing, because कहीं you need some biology. That thing was missing. So we started thinking क्या biology इसमें थे. Then came the various innovation कि हाँ कौन से हैं, क्या कुछ है. Avana Surgicals, Arthrex, Cure Surgicals, everybody. I mean, this is Arthrex, the main company, which has brought this product because of various innovation from the scientists, from the researchers, from the doctors. I mean, doctors as shoulder surgeons. They started thinking, what biology can I add to the muscle so that it doesn't tear off? Because once it's tear off, patients के लिए 6 months of rehab, 3 months of rehab, painful surgery, painful rehabilitation. Of course, money भी है इसमें. उसके बाद से they are still the same. I mean, for a person, for a doctor, it's like disappointing. Patients कहते हैं ये, लेकिन doctors भी feel करते हैं. So then we started thinking इसमें क्या कुछ करें जो कि ये tear ना फिर से ना हो. This is the one of the best one. There are a couple of things in the market. This is the best one. It's a patch. Okay. जैसे आप कहते हो ना कि suppose you are stitching 2 cloths together. Okay. Just for an example, 2 कपड़े हैं जो कि थोड़े से वो घिस चुके हैं, उसको आप टाके लगा रहे हो, सिल रहे हो. आपको लगे खींचोगे फट जाएगा. तो आप क्या करते हो, एक ऊपर से एक और कपड़े का लेयर लगा दो. जैसे टायर पंक्चर होने के बाद you put a patch. So it's a similar one, you put a patch. Okay. Same thing to do with shoulders. Same thing. Unfortunately, we are carpenters. We are so yeah. So it's an idea, human idea. So it's just a video showing what the patch looks like. So this is a dermis patch. इस उपचार से ठीक हुए कुछ मरीजों से पत्रकारों ने मुलाकात की, जिसमें 26 वर्षीय बासु बत्रा थे, तो वहीं 64 वर्षीय कांता देवी से भी मुलाकात की और उनसे जानकारी ली कि सर्जरी के बाद उन्हें कितना आराम पहुंचा है, जिससे पता चले कि सर्जरी वाकई कामयाब है. ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज, दिल्ली, देश की आवाज. सर बेटर है पहले से, और वो तो रिकवरी के बाद ही पता चलेगा. कंप्लीट रिकवरी के बाद ही पता चलेगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज नाउ. कब हुआ आपका ऑपरेशन? सर 5 जून को. 5 जून को हुआ. तो अब 5 जून से अब तक जो है कैसे रिलीफ महसूस कर रहे हैं? सर बहुत बेटर है पहले से. उससे पहले कब चोट लगी थी आपको? सर ये प्रॉब्लम मुझे 2021 से हो रही है. इसकी पहली सर्जरी 2021 में हुई थी आफ्टर 11 डिसलोकेशंस. उसके बाद मेरी 2 सर्जरी फेल हो गई एंड आई हैड टू गेट अनदर सर्जरी बिकॉज इट वाज डिसलोकेटेड. क्या आपको लगता है कि ये जो पैच है इसके बारे में आपने पहले सुना या फिर? सर मैंने नहीं सुना. मेरे को डॉक्टर प्रियदर्शी ने ये सजेस्ट किया कि हमें ये डालना चाहिए बिकॉज मेरे शोल्डर की हालत बहुत ख़राब थी. लाइक काफ़ी रप्चर्स थे, मसल्स वगैरह भी फटे हुए थे, तो ये वाज लाइक डाल देते, इट विल मेक इट स्ट्रॉन्गर. कितना भरोसा करते हैं इस पैच पर? सर अब तो बताएगा टाइम. कितना टाइम दिया है कि कितने समय में आप रिकवर कर सकते हैं, कितने समय में आपका सर मेरे को 6 महीने के राउंड दिए गए हैं कि रिकवरी हो जाएगी. बट जब वो ये फिजियोथेरेपी जितनी ज़्यादा बेटर मैं करता जाऊँगा उतना बेटर शोल्डर होता जाएगा. फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास है या आपको? सर थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, वो करवाते हैं. स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट अलग होते हैं. ठीक है, थैंक यू. डबल की बात है कि डिसीज डोनर पैच क्या है ये पैच और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे डॉक्टर इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में लगता है कि आप इसको इम्पोर्ट
हाँ, तो ये पैच एक्चुअली ह्यूमन डर्मा टिश्यू है जो कि स्किन होता है। तो जब भी हम शोल्डर सर्जरी करते हैं, जो रोटेटर कफ टेंडन की रिपेयर करते हैं, तो उसमें एक इशू आता है कि आपने रिपेयर कर दिया और दोबारा वो फट जाए, तो रीटेयर के इश्यूज होते हैं। मैं नहीं, जो भी इंडिया में सर्जन या वर्ल्ड वाइड सर्जन है, सबके कुछ ना कुछ फेलियर्स होते हैं और हमेशा ना हम कोशिश करते हैं कि इसको इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें जो पैच आता है, एक सपोर्ट होता है कि आपकी जो दोबारा टूटने के चांसेस थोड़े से कम हो जाए, तो वो है ये। तो इसमें ये जो अभी जो हमने यूज़ किया है वो ह्यूमन डर्मिस है, जिसमें कोई सेल नहीं है। तो इसमें कोई जो रिएक्शन जो होते हैं दूसरे का अपने बॉडी में यूज़ करें तो उससे रिएक्शंस होते हैं, उसका कोई रिस्क नहीं है। स्टडीज़ हैं बहुत सारी, लिटरेचर है बहुत सारे, तो इसमें ऑलमोस्ट निल रिस्क है, कोई भी रिस्क नहीं है, निल है रिस्क। तो इसे हमने यूज़ किया। तो आई थिंक इसके साथ इसमें है कि बाकी सारे पैचेस से ये थोड़ी सी स्ट्रांग भी होती है, क्योंकि जब हमारी टेंडन टूटती है तो पैचेस भी टूट सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रांग है तो इसमें दोबारा इसके टूटने के चांसेस कम होते हैं। और जो हमारी बॉडी से मिलता जुलता है, सेम डीएनए होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी जो स्किन की स्ट्रक्चर और जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, तो इससे बॉडी में इंटीग्रेशन भी अच्छे से होता है। सो वी गेटिंग दैट बायोलॉजी because it's a human tissue, we getting that strength because again it's a human tissue. सर इजीली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि डिसीज सो ये जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो भी प्रोसेसिंग होती है, नॉट मैन्युफैक्चरिंग, जो भी प्रोसेसिंग होती है स्टैंडर्ड वे में होती है। जो वहाँ पे बनाते हैं वहाँ से आप इजीली रिट्रीव कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, वहाँ से इजीली बुला सकते हैं। बस है कि हमें थोड़ा दिन पहले ऑर्डर करना होता है। अब जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि हाँ इंडिया में हमारे पास कुछ नंबर्स ऑलरेडी हों, जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो आपके पास होने चाहिए। तो फर्स्ट लाने में हमें 2-3 महीने का समय लग गया था, लेकिन थैंक्स टू दोज गाइस अब ये रियली अवेलेबल है। पेशेंट्स को कैसे जो करेंगे कि फ्यूचर में उनको जो है दिक्कत नहीं आएगी? देखो, पेशेंट से वी आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, वी ऑलवेज से कि हाँ हमारे लिए इवन ज़रूरी होता है कि हम सक्सेस रेट पहले डिस्कस करें, जितनी प्रॉब्लम आने वाली है सर्जरी में या फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी हम डिस्कस करें। सो एज अ रूटीन आई थिंक ये मेरी प्रैक्टिस में है कि आई ऑलवेज डिस्कस द बेनिफिट्स एंड द रिस्क। तो उसमें जब रिस्क डिस्कस करते हैं, हैव टू टेल हिम कि हाँ ये मैं करने जा रहा हूँ लेकिन इसमें थोड़े से रिस्क हैं, एंड देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग द ऑप्शंस कि इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, या फिर अगर ये रिस्क हो जाता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। उसमें ये डिस्कशन आती है कि हाँ ये चीज़ अवेलेबल है, इसको करने से मुझे थोड़ा सा बेनिफिट होगा। बेनिफिट मतलब कि मुझे एश्योरेंस रहेगा कि हमारे रिटेयर रेट्स कम हो जाएंगे। आई थिंक कोई भी एक समझदार पेशेंट्स होते हैं वो नापात वाला डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं। मेरा कांता देवी। मैडम आपको पैच लगा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है मुझे। पैच नहीं, मैस लगा है, नॉट पैच। आपको ये बताइए कि कब से प्रॉब्लम थी? मुझे 5 साल से प्रॉब्लम थी। उसी दिन से मैं जगह जगह दिखाती रही, कोई मुझे आराम नहीं मिला मुझे। फिर मैं बाद में सर के साथ पास आई थी, सर ने MRI कराई, उन्होंने इसमें वो कह कि इसमें मांसपेशी फटी हुई है आपकी। मैंने सर बोले कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा। फिर हमने इसकी सर्जरी कराई, अब मुझे अच्छा लगा। इससे पहले आपने कभी इस सर्जरी के बारे में सुना था? नहीं सुना, हमारा बेटा डॉक्टर था, उन्होंने सुना है, वो वही लेके आए थे। सर एक बार आप हो रहा है कि काम करेगा जिस तरह से ऑपरेट हुआ है? हाँ, कैन बी एक्सपेक्टेड, बात रिकवरी हो जाएगी, उम्मीद लगती है पूरी। पेन नहीं, अब फिजियोथेरेपी के फील्ड पे जाना है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल आराम हो जाए। What was the date when you have done this surgery? Pardon? What was the date when you have this surgery? 15 जुलाई 15th July. 15 जुलाई 2025 till today, up this date we are feeling relief, And the future is you are looking. can be expected in good condition. Recovery will be. ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।